Hello and welcome. Do you know the condition of poverty could affect our socio-cultural development? Let me tell you precisely what happens. We generally think that poverty or some condition of scarcity affects economically. You do not have money, you cannot buy anything. You want to buy sweets, you want to buy clothing, choices will be restricted. Poverty limits your choices. Okay. But what about socio-cultural impact of poverty? When you try to understand socio-cultural impact of poverty, first of all, you should know that what do you mean by socio-cultural? What kind of values are more prevalent in people who come from these conditions, who are from these conditions, condition of poverty or scarcity or deprivation, whatever. What kind of norms they follow, what kind of beliefs they have, what kind of expectations they have in life. All these things make up a system that goes socio-cultural things, socio-cultural uh, makeup of personality, socio-cultural makeup of an individual. So if you analyze the common socio-cultural impact of poverty, many researchers have found that there are certain common pattern. And what are those patterns? First, poverty is a conditions in which you develop culture of adaptations. You try to adjust compromising nature. When you have, then you cannot live in a healthy way when you have a feeling of frustration all the time. So people who live in a condition of poverty, they develop that sort of beliefs and you know some psychological things in their mind that help them to adjust and adapt to poverty. Oscar Lebis is a person who has done extensive research on poverty. He says that poverty help make person learn some adaptive responses. थोड़ी सी चीज़ों में कैसे गुजारा करना है वो सिखाता है. एंड दे मेक यू लेस एस्पायरिंग. बहुत हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी नील बटा सन्नाटा, उसमें एक इस बात को हाईलाइट किया. स्टोरी लाइन में हाईलाइटेड है कि जब टीचर पूछता है कि आप बताओ कि आपका सपना क्या है लाइफ में, बोला कोई सपना नहीं. सीधे कहाँ से आती, मतलब कि क्या बनोगी आप ये बता दो केवल लाइफ में. मतलब मेरी माँ बाई है, दूसरे घरों में खाना बनाती है, काम करती है, मैं भी वही बनूंगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से विद दिस एग्जांपल, दैट यू बिकम लेस एस्पायरिंग. तो आपको फ्रस्ट्रेशन ही नहीं होता. ज़्यादा करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द कल्चर. सी दिस थिंग, it makes you think in that way, believe in that way. मेरे लिए क्या सपना है, सपने तो बड़े लोग normally. So you try to adapt and adjust with the given conditions. What do you think, that poor people remain frustrated most of the time? No, they become adjusted with that. They develop fatalistic attitude, and that fatalism help them to adjust with the limited resources they have, the kind of scarcity and around them that are prevalent, that they adjust with that. So Oscar Levy says that it's adaptations. So he's right. Culture of poverty create poverty of culture. They will not culture of poverty means if condition is like that, then mainstream cultures की चीज़ों को आप you will not be willing to learn.
क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं है वहाँ पे। एंड समटाइम पॉवर्टी क्रिएट रिएक्शंस ऑल्सो। जो आप बड़े लेवल पे रिएक्शंस देखते, जो माओइज्म आप कह देते, या दे रिएक्ट जो मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट जो कहते बड़े लेवल पे, और नीचे के लेवल पे आप जो वो आइडियोलॉजिकल है कि भाई ये हैव एंड हैव नॉट्स की लड़ाई तो चलती ही रहेगी। वो तो खैर एक आइडियोलॉजी बड़ी लेवल पे लड़ाई है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल्स के लेवल पे साइकोलॉजी में, इन साइकोलॉजी व्हाट हाउ अ पुअर पर्सन थिंक्स, हाउ ही रिएक्ट टू दैट। गुस्से में जब चीज़ें चाहिए नहीं मिलता है, अगर उसको जरूरी नहीं हर समय एडजस्टेड हो जाए, he may resort to something that we call in legal term delinquency, जुवेनाइल डिलिंक्वेंट। आपने देखा होगा, बहुत बाल अपराधी, वैसे काम जो नियम तोड़ते हैं, छोटे स्नैचिंग, ये कुछ छोटी मोटी चोरियां करने में जो पकड़े जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? डिलिंक्वेंट। डिलिंक्वेंसी कुड बी अ रिएक्शंस इन द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। सी दिस थिंग। एंड डिलिंक्वेंसी इन मेनी हाउस होल्ड इज़ नॉट वेरी नॉर्मेटिव। वो अपने छोटे बच्चों को भी इस तरह से सिखाते हुए पाए गए, क्योंकि वो दैट इज़ ए नॉर्मल थिंग्स फॉर यू। आप उसको डिलिंक्वेंट कहते हैं कि फ्रॉम द मेन स्ट्रीम नॉर्म्स इट इज़ डिलिंक्वेंट। लेकिन अगर मैं चोरी करता हूँ तो मैं अपने छोटे बच्चों को भी ऐसा ही कहूँगा कि नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैं अपने बच्चों को उस तरह से सिखाऊंगा, और वो नहीं सीखता तो मैं कहा इसकी स्किल ही नहीं है, वो सर्वाइव नहीं करेगा ये। तो सी दिस थिंग एंड रिएक्शंस both as a adaptation, as a reactions. Try to understand this thing, that condition of poverty may create such socio-cultural consequences that my beliefs, suppose you are from affluent society and I am from poor society, then my beliefs and your beliefs could be different, my values, your value could be different, my style of living, your style of living could be different. Style means not material style, I'm talking about the way we think about reality, what is normal and what is not normal. चोरी करना पाप है आप सोचते हो, मेरे लिए तो वो लाइवली का साधन है, ऐसा सोच। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हेल्प मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन दैट वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट यू मीन बाय सोशियो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। सोशियो कल्चरल मीन्स आप उस नॉर्म्स को नॉर्मल मानते हो, आपके लिए उनका गिल्ट फीलिंग नहीं होता। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे मोटे अपराध कर दे, कुछ गलती कर दे तो हमें गिल्ट फीलिंग होती, बिकॉज वी वैल्यू दैट, वी वैल्यू दिस बिहेवियर, वी आर गाइडेड बाई दिस मॉरलिटी एंड आइडियल। बट देयर मॉरलिटी एंड आइडियल्स you may try to teach through textbook, you may try to teach through examples and serials and all, but the ground reality is that he found कि चोरी करके जो लोग लाए हैं या मैल प्रैक्टिसेस में जो इन्वॉल्व हैं, वो उस तरीके के जी रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं हमसे। उनका पीयर ग्रुप वैसा है जो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। आप कहते हैं कि आपका पीयर ग्रुप जैसा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस, उनकी आइडेंटिटी की भी अपनी नीड है बच्चे, और वो आइडेंटिटी के लिए अपने पीयर प्रेशर के ग्रुप में आते हैं, और वो उनका सोशल डेवलपमेंट वैसा होता है। सो द काइंड ऑफ नॉर्म्स, काइंड्स ऑफ वैल्यूज, काइंड्स ऑफ बिलीव्स दे कैरी विद देम could be different. सोशियो-कल्चरल इम्पैक्ट कल्चर ही है पूरा, मतलब कल्चर आपको एक लगता होगा कि एक कल्चर है, कल्चर के अंदर कल्चर। ऑस्कर लेविस इसी बात को एम्फेसाइज कर रहा था, बहुत सारे रिसर्चर हैं। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, पॉवर्टी का अलग कल्चर है, धरावी में रहने वाले लोग की सोच, उनकी सच्चाई, उनके वैल्यू सिस्टम, उनका, आप कहते हो कि कोई डिलिंक्वेंट बिहेवियर है, जैसे आप कहते छोटे बच्चे वहाँ पर क्या कर, तो वो कानूनी रूप से यानी लॉ के टर्म में डिलिंक्वेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए मैंने कई बार, अभी कितनी बार बोल चुका हूँ, वो सर्वाइवल के रूप में देखते हैं वो, तो उनके लिए वो नहीं है, वो दैट इज़ नॉट अ एबनॉर्मल थिंग और इलीगल थिंग। उसी तरीके से जब गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन हो, तो ड्रिंक कर लेना, पैसे ज़्यादा आ गए तो थोड़ा गैम्बलिंग बैठ के कर लेना,
आपस में लड़ाई झगड़े में ब्लेड मार देना, ये करना, वो सब भी चीज़ें आपने देखा हो, बड़ा फ्रिक्वेंट। एक रेंज है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट एवरीवन इज लाइक दैट। तो वो ऐसे बिहेवियर भी ज़्यादा क्यों होते हैं, लड़ाई झगड़े आपने देखा होगा। कुछ खास पैटर्न जो है सोशियो कल्चरल चीज़ों का वो होता है। पीते ही है लोग, नॉर्मल, पी की लड़ाइयाँ भी करते, वो भी नॉर्मल है, और उसको सुलझाने की कोशिश भी करते, वो भी नॉर्मल है। तो आपके लिए जो नॉर्मल है उनके भी नॉर्मल है, वो नॉर्म्स अलग है थोड़े, और शायद उनके बिलीव्स, अभी मैं उसको तेज़ी से रिपीट किया मैंने, वैल्यूज़, उसके बिलीव्स, नॉर्म सब उनको अडेप्टिव करवा। तो दो तरह के पैरामीटर पे आप लाइन पर आप देख सकते हैं, एक अडेप्टिव किस तरीके से उनके लिए, और किस तरीके से पॉवर्टी एक रिएक्शंस क्रिएट करता है, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज पॉवर्टी पे लोग कैसे देते हैं। तो सोशियो कल्चरल वर्ड दिया था, सोशियो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो लास्ट में इसी बात को अंडरस्कोर कर पता कि आप बिलीव रिलेटेड, एटीट्यूड रिलेटेड, वैल्यू रिलेटेड, नॉर्म्स रिलेटेड, ट्रेडिशन रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में आप बताते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट कल्चर। कल्चर का मोटे मोटी मतलब होता है कि आइडियल्स, किस आइडियल को आप फॉलो करते हैं। मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इज कल्चर, एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस दो पार्ट है ना, एक कल्चर फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल की बात करूँ कि आप किस तरह से वैल्यूज़, आपके आइडियल्स लाइफ के क्या हैं, अभी मैंने एग्जांपल देकर समझाया था। तो ओवरऑल आपने समझा होगा कि पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी के कंडीशंस का अपना एक कल्चर होता है, एंड दैट क्रिएट्स ऑस्कर लेविस टर्म, इन ऑस्कर लेविस टर्म, पॉवर्टी ऑफ कल्चर। मतलब जो आप मेन स्ट्रीम के कल्चर की बात करते हैं, ये नॉर्म्स होना चाहिए, उसकी कमी रहती है अगर आप डिफिशियंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बट यस, दे इफ यू लुक फ्रॉम द इनसाइडर पर्सपेक्टिव, अगर उनके नज़रिए से देखें, इट इज़ लाइक दैट। अंडरस्टूड? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।